Okay, Ji. Today we will discuss the activity 3.4. Two scenarios are described below. In each case, produce the logic circuit and complete the truth table to represent the scenario. ठीक है? He has given you the different scenario. ठीक है? उसमें output आपके पास x होगी when. ठीक है ना? A chemical process is protected by a logic circuit. There are three inputs to the logic circuit representing the key parameter in the chemical process. ठीक है? An alarm X will be give an output value of 1 depending on the certain condition in the chemical process. Means के alarm जो है वो ring करेगा, ठीक है? When its value is 1. Depend upon the following parameters. कौन कौन से पैरामीटर हैं? कोई केमिकल प्रोसेस occur हो रहा है, ठीक है? उस केमिकल प्रोसेस में डिफरेंट पैरामीटर यूज हो रहे हैं, तो उस केमिकल प्रोसेस में कहीं पर भी कोई फ्लक्चुएशन आती है या कोई उसका ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो फिर अलार्म रिंग करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, वो उसने बताया हुआ है। केमिकल रिएक्शन रेट जिसको वो आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट्स वैल्यू, अब ये बाइनरी पैरामीटर है, ठीक है, आपको पता है ना, डिजिटल लॉजिक वर्क्स ऑन बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो ये बाइनरी पैरामीटर है आपका, तो इट कैन टेक टू वैल्यूज आइदर 0 और 1। तो उसने जो डिजाइन किया है कि 0 जो है व्हेन रिएक्शन रेट इज लेस देन 40 मोल, ठीक है, पर लीटर पर सेकंड, तो इसका जो रेट है 40 से लेस होगा तो देन इट्स 0 एंड 1 होगा व्हेन इट्स ग्रेटर देन 40। इन द सिमिलर वे टेम्परेचर फॉर T, ठीक है, एंड T सिमिलरली कैन गेट टू वैल्यूज आइदर 0 और 1. The temperature is greater than 115 degrees Celsius, then its value is 0, and it's less than this, then its value is 1. Concentration of the chemical is represented by the 0 when concentration of the mole is equals to 4 and 1 when it is concentration is greater than 4. So you know how to approach this problem. Stage 1 जो था मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जिस तरह प्रीवियस एक्टिविटी में, कि जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको इसकी लॉजिक स्टेटमेंट बनानी है। यू विल हैव टू मेक इट लॉजिक स्टेटमेंट, ठीक है। ये उसने दी हुई है, कंडीशंस दी हुई है उसने। व्हाट आर द कंडीशंस? एन अलार्म एक्स विल जनरेट द वैल्यू 1, ठीक है, 1 वैल्यू जनरेट करेगा, मींस कि ये रिंग करेगा, अलार्म बजेगा। आइदर रिएक्शन रेट इज 40, ठीक है, mole per liter per second, or concentration is greater than 4 mole and temperature is greater than 115 degree, or reaction rate is greater than 40, ठीक है, and temperature is greater than 115 degree Celsius. तो बेसिकली उसने क्या किया है, आपको ये तीन कंडीशन जो है एक स्टेटमेंट की शक्ल में दे दी है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज द थर्ड वन। तो हमने स्टेप 1 में क्या करना है, we will have to make their logic statement. तो देखिए पहला क्या है, reaction rate is less than 40, ठीक है, less than 40 means क्या हुआ कि R की वैल्यू will be 0. 0 means not 1, ठीक है, 0 का मीन हम क्या लेते हैं, not 1, ठीक है, जहां पर भी 0 होगा वो हम फिर not 1 उसको कंसिडर करेंगे। तो यहां पर आप देखें कि हमने क्या लिखा, R is not 1 means R is equals to 0. Then second condition क्या कह रहा है, concentration which is represented by C, concentration को किससे represent कर रहा है, C से। So C is greater than or equals to 40. C is greater than and equals to 40. What it mean? Greater than and equals to 40 का मतलब 1, ठीक है। So C is equals to 1 and temperature is greater than 115, and so temperature is represented by T, or greater than 1 means 0, देखें ये greater, ठीक है। when temperature is greater than 1150 then its binary value will be 0. तो इसकी जो लॉजिकल स्टेटमेंट बन जाएगी, क्या बनेगी, C is equals to 1 and T is equals to not 1, ठीक है, not 1 means 0, मैं आपको अगेन बता रहा हूं। Okay, are you getting me? Yes, sir. Sir. Okay. Yes, sir. Now third condition, reaction rate. Reaction rate is represented by R. Okay.
reaction rate is represented by R and it is greater than and equals to 40. So R is greater than and equals to 40. Its mean its value is 1. So in this case R is equals to 1. तो हमने क्या किया, R is equals to 1 and temperature is greater than 115 means T is not 1 or equals to 0. So this one becomes the third लॉजिकल स्टेटमेंट. ठीक है, तो जो उसने हमें स्टेटमेंट्स दी हैं, कंडीशंस दी हैं, हमने उनको लॉजिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. ठीक है, सिंपल है, इजी है. यहां तक होप किसी को कोई प्रॉब्लम. व्हाट इज द स्टेप 2? ड्रॉ देयर लॉजिक सर्किट्स. अब हमने क्या करना है, इनके लॉजिक सर्किट्स को ड्रॉ करना है. ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें किस किस लॉजिक सर्किट की जरूरत पड़ रही है. हमें एक और की पड़ रही है. ठीक है, एंड की पड़ रही है. We need and और यहाँ पर देखें not. तो ये बेसिकली ये 3 रिपीट हो रहे हैं इस कंडीशन के अंदर या इस सिनारियो के अंदर. सो वी नीड these logical circuits to make the complete these logic gates to make the complete circuit. Okay, now let's कि हम कैसे इसको डेवलप करते हैं. तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए ये 3 रखे हुए हैं. ठीक है, हम इसको 1 by 1 यूज करेंगे एज पर लॉजिकल स्टेटमेंट. तो देखिए नंबर 1 लॉजिकल स्टेटमेंट जो है, टू राइट द लॉजिकल स्टेटमेंट हमने क्या करना है, ये तो आप तो अपनी पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर लोगे. ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू 1. तो सिंपल है, नॉट गेट बनाएंगे तो इसकी सिंगल आउटपुट है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इसका हम नेम रख देते हैं आर. ठीक है, ये मैं आपके सामने बिल्ट इन कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए. ओके, तो ये आर हमने एक बाइनरी इनपुट इसमें दे दी. ठीक है ना. देन व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज इक्वल टू C is equals to 1 and T is not equals to 1. ठीक है, अब C and T के बिटवीन जो है वो AND गेट है. ठीक है, एज पर द सेकंड लॉजिकल कंडीशन वी हैव AND गेट बिटवीन C and T. तो आपने देखें C and T के बिटवीन जो है AND गेट डेवलप करना है. तो दिस वन इज द AND गेट. ठीक है, तो इस AND गेट को हमने डेवलप करना है बिटवीन C and T. ओके, तो हमारे पास ये C हो गया. लेकिन यहां पर ये देखिए जो T है, T इज नॉट 1 है. ठीक है, T इज नॉट 1, तो इट विल पास थ्रू द नॉट गेट. ठीक है, हमें नॉट गेट के थ्रू इसको पास कराना होगा. सो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह. ठीक है ना, हम इसको T नॉट करके पास करेंगे इसमें से. सो ये हमारे पास क्या हो गया, C and this is T. ओके, तो ये C and T, बट हमें क्या चाहिए, अब ये देखें जब इसमें से पास होगा तो इट विल बिकम C नॉट. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, T नॉट बन जाएगा. ओके, लाइक दिस. ठीक है, अब ये देखें, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये एंड हो रहे हैं. ठीक है, अब हमने दो लॉजिकल स्टेटमेंट, ये पहली वाली थी, दिस वन फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकंड वन. इनकी सर्किट डायग्राम हमने कंप्लीट कर दी. ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में और हो रही हैं. ठीक है, सो इट्स मीन कि हमने इन दोनों को और भी करना है. तो और करने के लिए क्या करूंगा, मैं और गेट को पुट अप कर दूंगा. ठीक है, तो
और गेट हमें यहां से ड्रॉ कर दूंगा, मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो ये और गेट आपका दोनों और हो गए, ठीक है। दिस वन इज द कंडीशन 1 एंड दिस वन इज द कंडीशन 2, बोथ आर और, ठीक है, दोनों यहां पर और हो रही है। सो व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन इज r is equals to 1 and t is not 1, ठीक है। इसका मतलब t अगेन यूज हो रहा है, एंड हो रहा है r is equals to 1 के साथ। ओके, फिर इसका मतलब है मैं एंड गेट को दोबारा यूज करूंगा। आप एक एंड गेट और ले लें, ठीक है। और यहां पर आप देखें कि इस t को दोबारा, t नॉट है ना, हियर यू कैन सी कि ये t नॉट 1 है, ठीक है। तो हम इसको अगेन यूज कर लेते हैं और r1 की इनपुट अलग से इंटर कर देते हैं। सर गेट बीच में नहीं आएगा सर? बीच में कहां पर कह रहे हैं? आर सी के। सो टी नॉट के लिए हम क्या करेंगे, टी नॉट इनपुट हम इधर से दे देंगे एंड आर को हम यहां से ड्रॉ करके इनपुट दे देंगे, या यू कैन आल्सो गिव द इनपुट फ्रॉम हियर, यहां से फिर आप इसको ऐसे इनपुट दे सकते हैं। ओके, सो फिर क्या हो रहा है, फिर कंडीशन 2 एंड 3 आपस में और हो रही, ओके, क्या हो रही है, और हो रही है। इट्स मीन कि आपने इन कंडीशंस को अगेन और करना है। तो फिर वन मोर और गेट लें आप, ठीक है ना। तो ये जो आउटपुट है कंडीशन 1 एंड 2 की, दिस इज और विद द थर्ड इनपुट, तो ये इसको आप इधर इसके साथ और करा दें। नाउ यू विल गेट द फाइनल आउटपुट विच इज x, ठीक है। ये x जो होगी इसकी फाइनल आउटपुट होगी। सर इसको हम स्ट्रेट अवे फुल कर सकते हैं सर ट्रुथ टेबल के लिए? सो नाउ इन दिस वे यू विल गेट द फाइनल आउटपुट, ठीक है। फाइनल आउटपुट के लिए हमने देखे बेसिकली इसको कैसे अप्रोच किया। दिस इज ओवर कंडीशन 1, ठीक है, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 थी। फिर दिस वन इज ओवर कंडीशन नंबर 2, इन दोनों को हमने क्या किया, करवाया और करवाया, एंड दिस वन इज ओवर कंडीशन नंबर 3, इसको हमने कंडीशन 3 एंड 2 के रिजल्ट को फिर और करवाया। सो वी गेट द फाइनल आउटपुट ओवर हियर, ठीक है, हमें फाइनल आउटपुट यहां पर मिल गई। ओके, अंडरस्टैंड कि हाउ वी ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फ्रॉम द लॉजिक स्टेटमेंट। दिस इज ओवर स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 इज, हमारा स्टेप 3 क्या है? स्टेप 2 मैंने यहाँ पर क्लियर भी करके आपके लिए बना दिया है, वहां मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, तो यहाँ मैंने इसकी सिंपल एंड क्लीन डायग्राम भी आपको बना दी, ठीक है। और ये आर जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है, आप आर पुट इनपुट इधर से डायरेक्ट भी इसको ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी। नाउ वी हैव स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 इज टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। अब आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, ठीक। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है बिकॉज के ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें। मैं आपको बता देता हूं, देखिए वी हैव टोटल पैरामीटर हमारे पास कितने हैं, R, T एंड C, वी हैव 3 इनपुट्स, ठीक है। सो यू नो व्हेन वी हैव 3 इनपुट्स, सर ये पैरामीटर मैथ वाला पैरामीटर सेम होता है? जी सेम होते हैं, ये पैरामीटर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। So now we have 3 parameters. It means when we have 3 inputs, 2 raised power 3 inputs. So how many outputs? We will have 8 outputs. ठीक है, हमारे पास कितनी आउटपुट्स होंगी? 8 होंगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन में आप क्या करते थे, एक्स वाई जी कर देते थे या ए बी सी कर देते। हियर वी यूज आर सी एंड टी, ठीक है। तो नेम चेंज है, अल्फाबेट्स चेंज है, बट मेथड सेम है। तो 8 है, तो 8 का हाफ क्या है, 4, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो 4 टाइम आप क्या सर ये वाला, 4 टाइम यू सर ये वाला जो आप, जी यस, तो ये वाला जो आपने बताया सर, इसमें जो ये हमारा c इज इक्वल टू 1 है सर, ये आपने वो उस तरह बनाया सर कि जो ट्रू कर रही है उसको आपने 1 किया है सर, जो नॉट ट्रू कर रही है उसको सर 0 किया है सर आपने?
सो आपने क्या करना है, 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1, देन व्हाट इज द हाफ ऑफ 4? 2. तो आपने क्या करना है, 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1. ओके, देन हमारे पास क्या है, 2 का हाफ इज 1, तो 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1. इन दिस फैशन आप क्या करोगे, ये पॉसिबल आउटकम्स को ड्रॉ कर लोगे. दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे हमारे पास कंडीशंस क्या हैं. अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस हम अपनी नेक्स्ट कॉलम्स को ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट है. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन, आर इज नॉट 1. ठीक है, यानी आर इज नॉट 1 का क्या मीन हो गया कि आर बार. ठीक है, तो हमने आर नॉट ड्रॉ कर लिया, कॉलम इसका ड्रॉ कर लिया, तो इसका सिंपल क्या होगा, 0 का 1 रिवर्स कर दें सब, तो हमारे पास आर नॉट का कॉलम आ जाएगा. ठीक है, देन हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन को ड्रॉ किया. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, इसको कॉलम में ड्रॉ किया, और सी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज नॉट का मतलब है 0. तो जहां पर हमें टी 0 मिलेगा, ठीक है, एंड सी 1 मिलेगा, वी विल पुट 1. देखें, अब हम सिंपल टी पहले 0 ढूंढ लेते हैं. टी 0, ओके, बट आर इज नॉट, सॉरी, सी इज नॉट 1, सो इसको तो आप छोड़ दें. ठीक है, यहां पर c इज इक्वल टू 1, इसको वैसे ही छोड़ दें. t इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1. तो ये कंडीशन मैच कर रही है, यहां पर मैच कर रहे हैं, एंड का प्रोसेस नहीं हो रहा. ठीक है, कीप इन माइंड, यहां पर एंड का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, वी आर जस्ट मैचिंग द वैल्यूज. ठीक है ना, हम वैल्यूज को मैच कर रहे हैं. तो आपके पास यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, 1 राइट कर देंगे. देन वी हैव t इज इक्वल टू 1, छोड़ दें. t इज इक्वल टू 0, ओके, बट c इज इक्वल टू नॉट 1, इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको. हियर वी हैव t इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 0, बट वी नीड c इज इक्वल टू 1 एज पर कंडीशन. ठीक है, तो हियर वी हैव t इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1, सो इधर भी हम 1 राइट करते हैं. ओके, तो इस तरह ये कॉलम भी आपको मिल जाएगा. देन हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है. व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? r इज इक्वल टू 1 एंड t इज नॉट इक्वल टू 1 मीन t इज इक्वल टू 0. सो हम इसको भी ड्रॉ करेंगे, r इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 0 के लिए. ओके, तो यहां पर आप देखें कि जहां पर हमें t 0 एंड r 1 मिलेगा, तो t इज इक्वल टू 0, ओके, बट r इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, एज पर कंडीशन r इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम नहीं लिख सकते 1. Here t is equals to 1 छोड़ दें, t is equals to 0 and r is not 1. ठीक है, t is equals to 1 छोड़ दें, t is equals to 0 and r is equals to 1. Okay, in this case we can write 1. हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं. So फिर 0, यहाँ पर देखें, t is equals to 1 छोड़ दें, t is equals to 0 and r is equals to 1. ठीक है, so here we can write. ठीक, यहाँ पर आपको बात समझ आ रही है ना? राइट जी, ये देखें, फिर ये आपको यहाँ पर 1 मिल गया, तो ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो गई. अब हमने इसको अप्रोच क्या करना है, हमने तो इसको सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अप्रोच करना है ना. हमने अभी देखें, हमने ये वाला कॉलम बना लिया. ठीक है, वी हैड मेड दिस कॉलम. ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, ये दोनों और हो रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन इज क्या हो रहे हैं, दोनों और हो रहे हैं. तो हमें इसका मतलब है कि इन दोनों को और भी करवाना है हमें. तो इन दोनों को और करवाने का मतलब क्या है कि मुझे और करवाना है किस किस को, टाइम इज शॉर्ट. अच्छा, मुझे और करवाना है इसको और इसको. ठीक है ना, जो मेरी डायग्राम बता रही है मुझे लॉजिक सर्किट्स. ट्रुथ टेबल हम क्यों बनाते हैं? ठीक है, यही तो हम प्रूफ करते हैं इसके थ्रू. ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला कॉलम बना रहा हूं, इस और गेट वाला. ठीक है ना, तो इन दोनों को अब यहां पर हम और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, यहां पर वी आर नॉट डूइंग द कंपैरिजन, हम यहां कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिंपल और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1. ठीक है, तो 1 प्लस 1 1. तो ये सारा आपके पास इस तरह और के ऑपरेशन के थ्रू, ये देखिए मैंने बताया भी हुआ. तो ये और हो रहा है बिटवीन दिस
दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। तो अब यहां पर देखें कि ये वाला कॉलम भी हमने ड्रॉ कर दिया, तो फाइनल आउटपुट कैसे आ रही है? फाइनल आउटपुट तो ये आ रही है ना, तो ये फाइनल आउटपुट किसकी मदद से आ रही है? थ्रू दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। तो ये दोनों कॉलम्स की हेल्प से और जो हो रहा है, फिर यहाँ फाइनल आउटपुट वी आर गेटिंग दी फाइनल आउटपुट। तो इसका मतलब है कि मुझे ये वाला कॉलम लेना है जो अभी मैंने बनाया है, यानी कि दिस वन। ठीक है ना, अभी जो मैंने क्रिएट किया है कॉलम, ठीक है, वो ये वाला किया, और इसको मैंने क्या करना है, और करना है। ठीक है ना, इसके साथ और करना है इस वाले के साथ, टी एंड आर, ये वाला जो एंड है इसके साथ मुझे इसको और करना है, यानी बेसिकली ये दोनों और होंगे। ठीक है ना, तो सिंपल मैंने क्या किया, अब मैंने क्या कर रहा हूं, इसको और इसको और कर रहा हूं। क्लियर हो रही है बात आपको? एक सेकंड, आपकी आसानी के लिए मैंने यह लिख दिया है, द फाइनल आउटपुट इज कॉलम 6 और कॉलम 7 को और करके आ रही है। ठीक है, कॉलम 6 कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, सो दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, तो दोनों को हमने और किया, तो हमें ये फाइनल आउटपुट आ गई 0 + 1, ये दोनों। ठीक है, 0 + 1 1, 0 + 1 1। ठीक है, और ऑपरेशन बहुत सिंपल है, आप जानते हैं। सो दिस इज ओवर फाइनल आउटपुट। ये हमारे पास क्या आ गई? फाइनल आउटपुट आ गई इस लॉजिकल सर्किट डायग्राम की एंड दिस सिनेरियो। तो इस सिनेरियो की आपके पास फाइनल आउटपुट आ गई। क्लियर होगी बात आपको? ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्टेप और थर्ड स्टेप। यहीं पर मैं आपको ट्रुथ टेबल का सेकंड मेथड भी बता देता हूं, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो अपनी आउटपुट को, या अगर आप उस मेथड को अडॉप्ट करना चाहते हो जो आपने प्रीवियस, इससे पहले जो शुरू की स्टार्ट की एक्टिविटीज में अडॉप्ट की थी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए सिंपली इसको क्या करोगे, अपनी सर्किट डायग्राम को डिवाइड कर लोगे डिफरेंट आउटपुट्स में। वही सिंपल क्या करेंगे, आप नेमिंग स्कीम यूज करेंगे, कॉलम्स के नेम दे देंगे। ठीक है, अगर आप इसको नेम दे दें, ठीक, जो मैंने नेमिंग स्कीम यूज की है वही आप भी यूज कर लें समझाने में। यहां पर ये देखें, आप क्या करें, नेमिंग सर आंसर सेम आएगा दोनों का सर? जी सेम आएगा। ठीक है, यही मैं आपको बता तो फिर तो पहला वाला ज्यादा आसान सर, ये जो अभी समझा रहे हैं सर इससे पहले। जी जी, इट्स डिपेंड ऑन यू कि कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करना चाहते हो। ठीक है, ये वाला लेंथी है सर, इसमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, ये बट मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आप बाद में जिस तरह जिसको चाहो अडॉप्ट कर लें। ठीक है, सो इसकी आउटपुट को हमने आर नॉट का नाम दे दिया। ठीक है, सी एंड टी नॉट। ठीक है, इसकी जो आउटपुट है आई गिव द नेम क्यू। ठीक है, इन दोनों को जो और करके रिजल्ट आया है उसको मैंने वी का नेम दे दिया है, और इन दोनों का जो एंड किया है इसको मैंने डब्ल्यू का नेम दे दिया। ओके, तो इन दिस वे मैंने क्या किया है कि सिंपल नेमिंग, कॉलम की नेमिंग कर ली है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इन सबके कॉलम ड्रॉ करूंगा। राइट, सेम वे में 3 इनपुट्स हैं, टोटल 8 आउटकम्स होंगे। हियर यू कैन सी ये सी टी आ गया। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब क्या करूंगा, इसको फॉलो करूंगा, मुझे आर नॉट का कॉलम चाहिए, आई नीड आर नॉट कॉलम। तो आर का नॉट कर दें तो इट्स मुझे जो है आई विल गेट दी आर नॉट कॉलम, तो मुझे यहाँ पर आर नॉट का कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, देन मुझे क्या चाहिए, सी एंड टी नॉट को एंड करना है। ठीक है, तो मुझे क्यू का कॉलम मिलेगा। तो क्यू के कॉलम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टी नॉट कॉलम। ठीक है, मुझे यहाँ पे टी नॉट का कॉलम चाहिए होगा, क्योंकि अगर टी नॉट होगा तो वो ये और ये एंड हो रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, नॉट टी बट टी नॉट। ठीक है, टी नॉट हो रहा है, टी नहीं, टी इसमें से पास होके टी नॉट हो रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने टी नॉट का कॉलम भी ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, 0 को 1, ठीक है, 1 को 0, सिंपल। ठीक है, ये तो कोई बड़ी साइंस नहीं है। देन मुझे क्यू मिल गया। ठीक है, क्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, क्यू इज एंड बिटवीन सी एंड टी नॉट।
सी एंड टी नॉट के बिटवीन एंड है, तो ये मैं इसको यहाँ पर क्यू को एंड कर लूंगा बिटवीन सी एंड टी नॉट। तो सी एंड टी नॉट का मतलब क्या हुआ, 0 इंटू 1, 0 एंड 1 आपके पास 0 हो गया, यानी आपने दिस कॉलम एंड दिस कॉलम इस दोनों को आपस में एंड करने, सिंपल बात है। तो उसमें देख लें 1 इंटू 1 1 हो गया, तो ये एंड का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर लें, ठीक है, ये सिंपल बात है, यू कैन डू इट। देन मेरे पास जो नेक्स्ट है वो v है, ठीक है, v इज बिटवीन, v क्या कर रहा है, और हो रहा है बिटवीन किसके, r नॉट एंड q नॉट, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन जो है वो और हो रहा है, एंड देन आई गेट v। तो v का मतलब हुआ r नॉट और q, सो r नॉट एंड q, ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि दिस वन। तो इन दोनों के दरमियान मैंने और कर दिया, ठीक है, तो मुझे ये वाला कॉलम मिल गया। और ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म इट, इट्स वेरी इजी, सिंपल प्लस करना है, ठीक है ना, तो आपको v कॉलम मिल गया। देन w, तो w इज सिंपली बिटवीन t नॉट एंड r, तो जब t नॉट एंड r को और करेंगे तो आई विल गेट w, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि ये w कॉलम जो मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, वो कैसे मिल रहा है कि मुझे r नॉट, सॉरी r एंड t नॉट जब मैं कर रहा हूं तो आई विल गेट w। ये दोनों जब आपस में वर्किंग करें, देखें ना, यहां से आपको पता चल जाता है t नॉट एंड r, तो इन दोनों को जब आप कर रहे हैं और कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, W। तो यहां पर आपको इस तरह W भी मिल गया, ओके, तो ये W का कॉलम और करके आपको मिल गया। नाउ द फाइनल आउटपुट इट्स बिटवीन V और W, यानी इन दोनों के दरमियान, ठीक है, और का प्रोसेस होने से वी विल गेट फाइनल आउटपुट X। तो देखें इन दोनों को जब हमने और किया 1, ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, ठीक है, तो ये करते करते ये सारा, नाउ यू कैन मैच, आप देखेंगे कि इसकी जो फाइनल आउटपुट आई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम 1s 0 1 0, एंड यहां पर आप देखिए 5 टाइम 1s 0 1 0, तो सो आउटपुट इज द सेम इन बोथ केसेस। इट्स मीन कि आपने सर्किट्स भी सही ड्रॉ किए हैं एंड ट्रुथ टेबल भी ठीक तरह ड्रॉ, ओके। तो होप आपको अभी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने कैसे एक सिनेरियो को अप्रोच करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ, क्या करेंगे हम, इनकी लॉजिकल स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे, दिस इज स्टेप 1, एंड देन स्टेप 2 इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ठीक है। आप उस लॉजिक स्टेटमेंट को सर्किट डायग्राम में 1 बाय 1 देख के कर सकते हैं, ठीक, एंड देन फिर हम जो है इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ट्रुथ टेबल को आपको मैंने दोनों मेथड्स बता दिए, हाउ कैन वी ड्रॉ, ओके। तो होप अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।